A very good morning, dear students. Welcome to Path online classes. Students, in previous tutorial, we came to know how to create a web page using HTML. Yes, HTML, that is hypertext markup language, that is used to create web pages. ठीक है, और हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? What are the tags? What are tags or elements? बच्चे, tags are the commands that are used to give the instructions to the web browser what to display and how to display on the web page. Yes. Next, we have discussed the structure of HTML document. Okay, and what are the various requirements to create a web page? बच्चे, क्या क्या चाहिए होता है आपको एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए? Yes, we need a web browser and a text editor. Yes, text editor that is used to write HTML code, and web browser if you want to see the output of the web page, then you can see on the with the help of web browser. Yes, next हमने स्टार्ट कर दिया था, कुछ टैग्स डिस्कस किए थे like HTML tag, that is the very first one tag of an HTML document. Yes, next tag is head tag, that is used to give the title to the web page, और head tag के अंदर हम एक title tag यूज करते हैं. नेक्स्ट डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स. बच्चे, बॉडी टैग वट एवर यू वॉन्ट टू राइट ऑन द वेब पेज, वो किस पर लिखा जाता है, किसके अंदर लिखा जाता है, दैट इज रिटन विद इन द बॉडी टैग. एंड वट डू यू मीन बाय एट्रीब्यूट्स? Attributes means the special properties that you can attach to a tag that are called as its attributes. So students, today we will learn some more tags. ठीक है, आज हम कुछ और टैग्स डिस्कस करेंगे. The very first one tag that we will discuss, that is the use of font tag. What is the use of font tag? Next is break tag. Okay, and next is your heading tags. Heading tags, 6 heading tags are available. The very first one heading tag is H1. This is for the largest heading, and H6 is for the smallest heading. So let's start practically how to use font, break and heading tags. चलिए बेटा, for this you have to create an HTML document. I have already created an HTML document name as class 7. बच्चे, if you want, आप जो भी चेंजेस करेंगे वो हम नोटपैड फाइल में चेंजेस करेंगे. ठीक है, सो if you want to see the output, just double click on this file, and if you want to make changes in the notepad file, then right click on this file name and open with notepad. Okay, या से इसको ओपन कर लेंगे, और आप और यू कैन ऑल्सो ओपन इट, आप इसको एक और तरीके से ओपन कर सकते हैं. क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन एंड देन सर्च फॉर द नोटपैड फाइल. ओके, सर्च फॉर नोटपैड एप्लीकेशन. नोटपैड ओपन हो गया. नाउ क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ओपन. ठीक है, जैसे ही आप इफ़ यू वांट टू ओपन एनी फाइल, ओपन आप कमांड पे क्लिक किया आपने. नाउ सर्च फॉर योर फाइल. नाउ माय फाइल इज ऑन द डेस्कटॉप, और नेम क्या था फाइल का, दैट इज क्लास 7. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट हेयर फ्रॉम द ऑल फाइल. ओके, सो यू कैन राइट हेयर इफ यू रिमेंबर द नेम. माय नेम इज फाइल नेम इज class7.html. ओके, नाउ ओपन दिस. हाँ जी, जैसे ही ओपन किया कोड ओपन हो गया. नाउ this is your HTML. The very first one tag is HTML, and notepad file end किससे होती है? start भी HTML tag से होती है और end भी HTML से होती है. next tag is your head tag. next is title. title मैंने दे दिया my first web page. close of title tag, then close of head tag,
This complete is known as your head section. हाँ जी, which is used to give the title to the tab of web page. Title देना हो web page को तो you use head tag. Next is the body tag. Whatever you want to write on the web page वो कहाँ लिखेंगे? Body tag में. ठीक है, this is your starting body tag and this is ending body tag. So starting भी tag available है body का और एंड भी अवेलेबल है. सो दिस इज अ कंटेनर टैग. और कौन कौन से एट्रीब्यूट डिस्कस कर लिए थे हमने? दैट इज बीजी कलर विच इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज. एंड नेक्स्ट इज टेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑफ वेब पेज. नाउ द नेक्स्ट टैग इज font tag. Let's have a look on the output of this web page. हाँ जी, आउटपुट देखनी हो तो कैसे देखेंगे? अब हमने क्या क्या सेट किया है? बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू येलो एंड टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड. मीन्स वेब पेज पर जो भी आएगा बैकग्राउंड कलर आएगा येलो से और टेक्स्ट का कलर आएगा रेड कलर. सो लेट्स हैव अ लुक. फॉर दिस डबल क्लिक ऑन दिस फाइल नेम. नाउ दिस इज योर वेब पेज. ये आ गया आपके पास आउटपुट. दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज. यस, टेक्स्ट का कलर आ रहा है रेड और बैकग्राउंड कलर आ रहा है आपके पास येलो. एंड टैब का नेम क्या है आपका? माय फर्स्ट वेब पेज, जो आपने टाइटल टैग में दिया था. ओके, नाउ हैव अ लुक. अब हमें क्या करना है? नोटपैड की कोडिंग को चेंज करेंगे. नाउ आई वांट, सपोज मैंने ये लिखा दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. नाउ आई वांट टू राइट, आई वांट टू लर्न इन नेक्स्ट लाइन. आई वांट टू राइट, आई वांट टू लर्न how to use, I want to learn how to use font tag. Okay, now see the output. बच्चे मैंने इसे अलग अलग लाइंस में लिखा है, बट जैसे ही आप इसको Ctrl+S प्रेस करेंगे, सेव करेंगे जो भी आपने नोटपैड फाइल में चेंजेस किए हैं, फिर क्या करेंगे? ओपन करेंगे वेब पेज को और रिफ्रेश करेंगे बाय यूजिंग F5 और दिस रिफ्रेश बटन. ओके, आपको सिखाया था लास्ट टाइम कि हाउ टू, इफ यू मेक एनी चेंजेस इन द नोटपैड फाइल और अगर आपको उसका रिजल्ट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा वेब पेज को, आइदर बाय प्रेसिंग F5 फंक्शन की और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस कमांड. ओके, F5. जैसे ही लिखा, देखो जो आउटपुट आ रही है दैट इज इन द सिंगल लाइन, जबकि मैंने इसे 2 लाइन्स में लिखा था. ठीक है, अब हाउ इट्स पॉसिबल? तो बेटा इफ यू वांट टू राइट इन अ सेपरेट लाइन, अगर आपको सेपरेट लाइन में लिखना है, पहला जो टैग हम यूज करेंगे दैट इज ब्रेक टैग. बेटा जहां भी आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हो ना, जस्ट राइट अ ब्रेक टैग, BR टैग. दिस इज एन एम्प्टी टैग, नो नीड टू क्लोज इट. जैसे ही आपका वेब ब्राउजर इस ब्रेक टैग को देखेगा, जहां आपने ब्रेक टैग लगाया वहीं पर लाइन को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा. सो व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक टैग? ब्रेक टैग इज एन एम्प्टी टैग and it is used to break a line or it is used to insert or provide blank lines. चलिए let's have a look. Firstly save this file, Ctrl+S and now see the output. जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे, ब्रेक टैग के बाद जो भी लिखा था वो आपका नेक्स्ट लाइन में आ गया. नाउ इफ यू वांट टू प्रोवाइड अ लाइन गैप, ठीक है, आप 1 और 2 लाइन गैप देना चाहते हो इन दोनों लाइंस के बीच में, तो यू कैन यूज ब्रेक टैग मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलिए एक बार और ब्रेक यूज कर लेते हैं, BR. ठीक है, 1 टाइम मैंने एक और यूज कर लिया ब्रेक टैग, Ctrl+S and then see the output by pressing F5. Yes, it gives 2 line space. So what is the use of break tag? Break tag is used to insert or provide blank lines, or it is also used to break a line. In next video, we will learn how to use font tag.